पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी था। इट वॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई ऐसे लोग आए जो ओरिजिनल्स, और ये पारुल जी ने बताया कि विथ 20 सॉन्ग्स इज दे आर लॉन्चिंग दिस Every week we are launching one song. एवरी वीक दे आर लॉन्चिंग वन सॉन्ग। तो मेरी तरफ से अपेक्षा फिल्म्स और इस म्यूज़िक कंपनी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और सर, मैं ये आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आजकल जो है सब अपनी कंपनियाँ हैं कि रीमिक्स, आजकल फिल्म में म्यूज़िक ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि ओरिजिनल म्यूज़िक उनको लगता है कि बन ही नहीं रहा है। और फिल्म का म्यूज़िक जब पुराने गाने, जैसे अभी मेरा एक गाना था, ये खबर छपवा दो अखबार में, वो लुका छुपी में आया। जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगा वैसे वो इतना अच्छा रिकॉर्डेड था, उसको और वो करके, लेकिन चलो फिर भी वो इतना अच्छा गाना था, चल गया वो। लेकिन हाँ, लेकिन ओरिजिनल्स परसों मैं रेडियो पे था, आकाशवाणी पे, तो ये बात चल रही थी कि आप ओरिजिनल्स और ये इसमें क्या समझते हैं। और कुछ नए आर्टिस्टों के फ़ोन्स आ रहे थे कि सर हम क्या करें, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के। मैं बोला अभी जो प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है ये डिजिटल मीडिया, कि मैं बोला आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, यू लॉन्च योर म्यूज़िक ऑन योर चैनल। और कोई मिला दो Raghav is Mukesh ji's son and a brilliant actor and a long way to be in the industry. So this is the हाँ जी सर जी, बोलिए जी। Mukesh ji, आज अपेक्षा म्यूजिक के नीचे which is easy also release गाने भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे पहले तो मैं अपेक्षा म्यूज़िक कंपनी को जो इस वक्त लॉन्च हो रही है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और एक ऐसे टाइम पे अपेक्षा ने डिसाइड किया कि अपना बैनर लॉन्च करेंगे जिसमें इसके अंदर म्यूज़िक बनाएंगे, क्योंकि आजकल इंडिविजुअल्स के लिए इतना इजी नहीं रहा, मुश्किल काम है। और फिर भी उनकी सोच को मैं वेलकम सोच है उनकी, तो मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं बैनर को। मैं उम्मीद करता हूं कि अपेक्षा बैनर के अंदर अच्छा म्यूज़िक बनेगा और लोगों तक पहुंचेगा। Also, you also getting into the industry. Now, the film is also just released. जी। Fathers daughters supporting and in Apeksha music also there's a father and a daughter. Yeah. So, क्या कहना चाहेंगे आप? I would like to congratulate them first of all. It's a brilliant step that they've taken, and it's really amazing that they're going to help find a lot of talent, which is going to help the industry eventually. And congratulations for आइए you सर, guys. आइए आइए Thank you so much. आइए। हाँ जी। We've just been asking the question just before you came in that today there's so much of music has gone to another level, and there's so many remixes, recreations. There's a time when you give such lovely melodies. Now Apeksha music has also come into the lobby of the film industry, and they've created some wonderful 20 songs. So what would you like to say, and what are your thoughts on the current scenario? Well, I think that I won't speak about the trend of the music, but obviously, music has come to a new high, I feel. And there's lots of different avenues. There's not only film music, but different music of different genres and different outlets for music, which is wonderful. And Apeksha Music is most welcome to join the bandwagon and create more music and find more new talents and new songs. And it's always wonderful, and it's a very lucrative business and opportunity for now for music. Now more than ever before, I feel the music has grown to a different level. There's a different level of revenue generation that is happening, and it's only fair that more companies like Apeksha come forward to garner more new talents. There's no dearth of talent in our country, and I'm very happy, and I wish them all the best. And all my good wishes and good Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. We have Mr. Shahid. the two songs are four songs we're releasing. The one is Launch and दो इन्होंने गाए। भाई ये तो गाते अच्छा नहीं, ये तो परफॉर्म भी कमाल करते हैं। दोनों में इनका जवाब ही नहीं। इनका मैंने देखा नहीं, मगर इनको मैंने देखा है परफॉर्म करते वक्त, और बहुत अच्छे कलाकार हैं।
और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाते भी बहुत अच्छा हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सॉन्ग्स कमिंग अप। मुझे भी भेजना एंड माई ब्लेसिंग्स एंड गुड लक एवरीथिंग। थैंक यू सर। रेडी? आइए अपेक्षा। शाहिद सर, नगर सर, आज अपेक्षा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है आपके गाने से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है? आई गेस मतलब क्वाइट ओवरवेलमिंग है, क्योंकि इतना ट्रस्ट जब कोई आर्टिस्ट पे कोई दिखा रहा है और काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी हाई होती है लोगों की। और जब भी कुछ करते हैं तो फुल ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो एंड इट्स रियली अमेजिंग टू बी इन सच गुड कंपनी एज शाहिद हिमसेल्फ, सो जस्ट हैप्पी टू बी हियर। शाहिद सर, आपके भैया नकाश जी बहुत ही कमाल सिंगर परफॉर्मर हैं और अच्छे इंसान हैं, और अपेक्षा हमारे साथ खड़ी हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती ये अपेक्षाएं उसका मतलब वो है मतलब यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट एक्चुअली। एग्जैक्टली। और अजय जसवाल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हमें अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए चुना। हमें लगता है कि हम अच्छा गाते हैं, और अच्छा गाने की हमारी और भी जिम्मेदारी और बन रही है। तो वी आर रियली ओवरवेल्म्ड, एंड इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम बहुत बहुत कामना करते हैं। Apeksha ma'am, you have such two amazing singers on board. Like, what do you want to say to them? What do you say? I am super happy and I'm super excited, and I'm very thankful that they came over here, and they are wonderful singers, and I listen to all their songs. तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, but yes, I'm really happy that they're over here, and they started, in fact we launched our music with their songs. So आप आज यहाँ हैं, अपेक्षा म्यूजिक का लॉन्च है, जैसा अपेक्षा मैम खुद यहाँ आए, क्या विशेष देना चाहेंगे इनका? मेरे लिए फैमिली है, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, और ये बच्ची हमारी बच्ची है। आई एम वेरी हैप्पी कि इनके नाम से ये लेबल लॉन्च हो रहा है। बहुत खूबसूरत गाने किए हैं, मैंने सारे गाने सुने हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और गाने बहुत कैची हैं। आई रियली होप एंड प्रे एंड आई नो कि ये गाने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, एंड अपेक्षा म्यूजिक इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉप वन डे। Ready? So ma'am, today we're here at the launch of Apeksha Music. Like, what is the feeling? What wishes you want to do? सबसे पहले तो मैं अपेक्षा म्यूज़िक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि वो ऐसे ही प्रोजेक्ट लाते रहें और हम सब देखते रहें, और ये इनका प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेस रहे। थैंक्स फॉर इनविटेशन। शहजाद जी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. Today Apeksha Music is launching, like from Apeksha Films to Apeksha Music. They are launching with folk songs. You are from Bollywood. What wishes you want to do? I just would like to tell Apeksha, being so young and launching a music company is really hats off and all the best for it. And looking forward for more good music. I think you're coming out with 18 songs. Yes, or that's something. right. Yes, and now you're launching 4 songs. That's really good to and in the beginning of the launch. Yeah, all the best for the future. Yes. म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है आज, अभी आपकी भी है, हमने भी आज की। सो क्या विशेष पहले आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका नाम से कंपनी लॉन्च हो रही जा रही है आज, अपेक्षा। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, और ये म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि म्यूज़िक कंपनीज होनी चाहिए जो कि हमारा जो संस्कार है, जो हमारे कल्चर हैं, और जो हमारा म्यूज़िक है, हमारी जो म्यूज़िक की सभ्यता है, ख़ास करके जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है, वो बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ के लिए मैं इनके पिताजी को और अपेक्षा जी को बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और इस अपेक्षा, इस नाम से, इस म्यूज़िक के जो लेवल आज जो ये बन रहा है, आज कंपनी फॉर्म हो रही है और लॉन्च होने जा रही है, इसमें ऐसे अच्छे आर्टिस्ट आएँ जो बहुत डिज़र्विंग हों, और किसी रीज़न से उनको कभी वो मंच नहीं मिल पाया शायद। और जितने भी जो हमारे गुणी कलाकार हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपनी को और इस म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि वी नीड गुड म्यूज़िक। मेरी दिल से शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपेक्षा बहुत अपना एक नाम बनाए, ये म्यूज़िक लेवल अपना ऐसा नाम बनाए, इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे संसार में,
कि लोग वेट करें कि इस लेवल से कोई अच्छा म्यूज़िक कब सुनने को मिलेगा, ऐसा इंतज़ार हो। जैसे एक टाइम पे हम इंतज़ार करते थे HMV से जब कैसेट वगैरह जब रिलीज़ होते थे, उसको लॉन्ग प्ले कहते थे, वो रिलीज़ हुआ करते थे, फिर उसके बाद कैसेट आया, फिर CD। तो यही दिल से दुआ है कि बहुत अच्छा करे काम अपेक्षा म्यूज़िक, और हम सब इसके साथ जुड़े रहें, और जितने म्यूज़िक के जितने भी जो फ्रेटर्निटी के हमारे जो अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे लिरिसिस्ट हैं, वो सब इसके साथ जुड़े और इस कंपनी को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो वेरी मच। Because there were very less players in the music industry, and now one more, Apeksha Network, Apeksha Music, Apeksha Films. So किसकी अपेक्षा है? अच्छे काम करेंगे अभी आगे, है ना? Thank you so much. जी, इट्स गुड। और अभी तो क्या है कि म्यूज़िक का एक अलग ही डायमेंशन, अलग ही मतलब कि जो सोलो म्यूज़िक जो पहले हम लोग पॉप कल्चर जो हम लोग करते थे, वो अभी फिर स्टार्ट हुआ है। एवरीबॉडी डूइंग इंडिविजुअल म्यूज़िक, तो अच्छा है। इट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल। दिस इज योर म्यूज़िक चैनल? इट्स अ चैनल, म्यूज़िक चैनल। ओरिजिनल सॉन्ग ऑलवेज वर्क, क्योंकि हम जब पहले सुनते थे 90s में जो गाने आते थे, जैसे सिल्क रूट के गाने, रेमो के गाने, तो हम लोग हर समय कनेक्टेड थे। और अभी फिर ये वो चीज़ हो रही है, ऑल बिग आर्टिस्ट आर डूइंग देयर सोलोज, तो अच्छा, इट्स गुड टाइम फॉर म्यूज़िक। थैंक यू। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि नए नए लोग आना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ पुराने लोगों के गाने सुन के। अब थोड़ा चेंज आना चाहिए। जैसे खान है, खान बरसों से चल रहे हैं, अब नए खान को आना चाहिए, ठीक है? तो मतलब नए म्यूज़िक कंपोजर्स आना चाहिए, नए गाने गाने वाले आना चाहिए, तो अब नई चीज़ें आना चाहिए। वैसे भी 2020 आने वाला है, तो 2020 में नए लोग आना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं वैसे दिखती तो बड़ी तड़कती भड़कती हूँ, लेकिन आई लव सूफ़ी सॉन्ग। मुझे नुसरत साहब के गाने बहुत पसंद हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मेरा रश के कमर जो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। तो बस यही बोल सकती हूँ कि शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देखकर हुस्न साक़ी पिघल ही गया। थैंक यू सो मच। मैंने अभी अपेक्षा से बोला कि अपेक्षा से क्या अपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट म्यूज़िक लेवल्स हैं हमारे यहाँ पे। जब कोई नया म्यूज़िक लेवल आता है तो वह सोचते हैं कि वहाँ से क्या नया आने वाला है, और इन्होंने कहा कि हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया में सिंगर्स हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, ताकि जो पुराने हैं, दिग्गज हैं, उनके सामने नए लोग कई बार नहीं टिक पाते हैं। सो अपेक्षा से मेरी अपेक्षा है कि वो नए सिंगर्स को बढ़ावा देंगी और नए सिंगर्स हमारे सामने आएंगे जिनके पास बहुत बहुत प्यारे गाने हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। गुड विशेज़ है अपेक्षा के लिए, और क्योंकि बात म्यूज़िक की है तो म्यूज़िक के लिए मैं हमेशा मैं जहाँ भी म्यूज़िक की बात होती मैं वहाँ होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक आप लोगों तक लाएं। और जहाँ तक अब तक जो गाने मैं देख रहा हूँ, शान, कुणाल, शाहिद मालिया, तो अच्छे सिंगर्स इस कंपनी में गा रहे हैं, और आई होप कि बहुत जल्दी मैं भी गाऊँगा। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज़ है अपेक्षा। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा जो हमारे कंपोजर्स हैं, जो इतना मैं फीलिंग की बात करूँ, क्या फील था उस समय और अभी क्या फील आ गया है? उस समय क्या फील था? हाँ, आई थिंक फीलिंग सेम ही है। नहीं, मैं बताता हूँ फीलिंग क्या होती है शान भाई। मेरी फीलिंग ये होती थी उस जमाने में कि 24 घंटे फोन ऐसा रहता था सामने कि कब आ जाए कब आ जाएगा, और अभी आता है तो अच्छा इसको फोन करना पड़ेगा क्या? जो फैक्ट है जो प्रैक्टिकल है? तो वही पूछ रहा हूँ कि सर क्या अंतर आ गया सर आपसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सर बता नहीं रहे सर। नहीं, लोगों का नजरिया चेंज हो कि नहीं हुआ? ये तो लोगों को ही पूछना पड़ेगा। मेरा ऐसा है कि मेरे जो बचपन के दोस्त अभी भी मेरे साथ में, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है शायद से मेरे लिए।
क्योंकि मुझे सेम फील होता है एवरी डे, यू नो, लाइक सेम एज एन मुझे खुशी होती है ज़रूर कि सलमान खान, शाहरुख खान, इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और इनके फेस पे मेरा वॉइस देखने को थोड़ा अजीब लगता है, बट जब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई फील लकी, यू नो। मैं आपसे गाना चाहता हूँ, आप एक गाना गाएं जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। नकाश अजीज इक्वल टू दिस सॉन्ग जो मेरी लाइफ को जी। मैं जब रहमान सर से मिला और मैंने उनकी एक फिल्म थी प्रॉफिट मोहम्मद पे जो बनाई थी उन्होंने, तो उस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे कुछ लाइक वोकल्स डिजाइन करने के लिए बुलाया था। मतलब उनके होते मैं वोकल्स डिजाइन नहीं किया, बट उन्होंने मुझे बताया कि ये करना है, तो आई थिंक जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत लाइक बहुत खुशी के आंसू आए थे उस दिन। क्या बात है ना, बजट अच्छा है ना, आज का कुर्सी उर्सी दिया ना, हाँ, वरना हम लोग को यार ऐसे खड़ा कर देते हैं यार ये लोग। आज हमने प्रोड्यूसर को बोला भाई थोड़ा बजट बढ़ाओ। शायद वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और अपेक्षा म्यूजिक के साथ आप जुड़ोगे हैं तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? एक सरकारी क्वेश्चन पूछना जरूरी है। जी जी। एक्सपीरियंस बहुत कमाल है, अच्छा था इसलिए यहाँ तक आ गए और आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है यार, एक बार जोड़ा ताली होनी चाहिए। शायद पहला गाना, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, वो पहला गाना जिसने लोगों का दिल जीता, आप रातों रात स्टार हो गए, वो गाना प्लीज गुनगुना दीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? हाँ, क्यों आपको वाहियात क्यों लगता है? वाहियात इसलिए कि शुरुआत तो पैदा होने से हो जाती है। नहीं, एक्चुअली वो म्यूजिक की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक की शुरुआत जैसे ही आप समझने लगते हैं, म्यूजिक की शुरुआत हो जाती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज तक आपकी जिंदगी में क्या मिला, क्या क्वेश्चन था? प्लीज आप ये स्टॉप करेंगे यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, प्लीज। यहाँ कि आपने ये गाना गाया है। नहीं, मैं अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपको ये अच्छा क्वेश्चन यही है कि मैं यकीन कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे जब मेरे कंपोजर्स मुझे गाने के लिए बुलाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि उन्होंने मुझे चूज किया गाने के लिए, और मुझे यकीन नहीं होता, इसलिए मैं 20-30 बार गाना सुन के फिर यकीन करता हूँ क्या मैंने गाया है। क्या बात, बहुत ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से, क्या बात है। अगर आप अपने मम्मी पापा को इस तरह कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा? ठीक है सर, लेकिन राष्ट्रीय अवार्ड मुझे कब मिल गया? वो पहला इंट्रोडक्शन के लाइन के बाद में मुझसे किसी और की बात हो रही है। बाकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। मेरे लिए सर आपने दे दिया बस। और जी जी जी। मैं दोस्तों, जब अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की बात चल रही है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इंटरव्यू वैसे पार्टी साहब दे रहे हैं, लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी है कि इन्हें हाल ही में 11वीं कक्षा के हिंदी सिलेबस के महाराष्ट्र के किताब पर इन पर एक पूरी चैप्टर है ऑन रेडियो जॉकी अनुराग पांडे, और हमारी दोस्ती, हमारी जान पहचान बहुत सालों की है, लेकिन आई एम सो प्राउड, सो थ्रिल्ड फॉर पांडे साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जब आए तो मुझे भी इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जो रिएक्शन दे रहे हैं लोग, मैं ऐसा हो रहा हूँ कि बाप रे, ऐसा भी है क्या? बहुत बड़ी बात है सर। नहीं वाकई अब लग रहा है कि बड़ी बात है। जब अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट कर दिया, सब दोस्तों ने कहा कि भाई क्या कमाल कर दिया। लेकिन शान, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से परिवार में। समझ रहा हूँ शान, जैसे कि मैं कुछ समय पहले जब आप आए थे तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, तो अधिकतर लोगों के जहन में रहता है शान की व्यक्तिगत जीवन के बारे में। और मैं तो बहुत ही, जब नया नया आया था, जब आप गाने आते थे, मैं सोचता था कि इतनी प्यारी आवाज है इस इंसान की, तो इंसान कितना अच्छा होगा, और वैसे ही निकला। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने क्या दिया? फिलहाल तो आपने ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए कि आई एम स्टिल रीलिंग अंडर द इफेक्ट, लेकिन बहुत लकी रहा हूँ कि बहुत प्यार मिला है, बहुत लोगों का साथ मिला है। शरण जी हैं, सुनील जी हैं, ललित जी हैं, हमारे सारे सीनियर कंपोजर्स, जिन्होंने जब भी मौका मिला मुझे, जहाँ भी उन्हें सही लगा उनसे उन्होंने गाने गवाए। तो आई थिंक हर सिंगर के लिए कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह होती है, लेकिन अगर किसी अच्छे गाने पर किसी कंपोजर को लगी कहा ये गाना फला फला इस सिंगर से हम गवाएंगे, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं होती। क्या बात कि उनको वो आपको कास्ट करते हैं ऐसे गाने पर। हमारे सारे जो सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं, ममता है, नकाश है, सबको यही लगता है कि बाकी बातें तो बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट अगर आशा जी
मेरे गाने पर उन्हें बहुत, जब से तेरे नैना ये गाना उन्हें बहुत पसंद आया, कहा कि शान बहुत अच्छा गाया। तो ऑफकोर्स ऐसे जब महान से भी महान कलाकार अगर आपका नाम भी उच्चारण करें अपने फोटो पर तो बहुत अच्छा लगता है। जब आशा जी ने बोला होगा जब से तेरे नैना के बारे में, तो क्या रिएक्शन था एग्जैक्टली, क्या बोला था उन्होंने आपको और हाउ वाज द रिएक्शन? एक्चुअली आप तो देख रहे हैं ना, ये पूरा ये ऑल इंडिया जा रहा है, तो रिएक्शन जब कोई आपको पर्सनली बताता है अच्छा तो लगता ही है, लेकिन अगर पब्लिकली सामने लोगों को कहते हैं तो और भी अच्छा। तो मुझे उन्होंने तो कहा था, लेकिन इससे पहले मैं जब पहली बार सुना तो इट वाज ऑन अ रेडियो स्टेशन और ऑन एन इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि मेरे शो मेरी शो और मैंने इनको फोन किया था, मैंने भाई क्या बात है, और फिर मैं दोबारा रिपीट किया उस शो को मैंने सिर्फ इनके लिए कि सुनो भाई, तो वो गाना हो जाता है, वो गाना हो जाए। और वो कौन सा गाना? मेरे परिवार में मतलब 3 पुश्तों से सब गाने वाले संगीत से ही जुड़े लोग हैं, और जब मैं शुरुआत में मेरे परिवार का सबसे वीकेस्ट लिंक नहीं था, मतलब पिताजी तो बहुत अच्छे कंपोजर थे, गाते थे, मम्मी भी गाती थी, मेरी ऑफकोर्स सिस्टर भी गाती हैं, तो मैं ही एक था जिसको मैं एथलीट था अच्छा खासा, मैं सोचा कि मैं कुछ स्पोर्ट्स में या कहीं और नाम कमाऊंगा, तो मुझे भी कभी भी सिंगिंग पर उतना खुद पर कॉन्फिडेंस था नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट परिवार से मिलना मुश्किल था क्योंकि मुझसे सब बेहतर सिंगर्स थे। फिर भी कभी बीवी ने बोला हो, पड़ोसन ने बोला हो, काम वाली भाई ने बोला हो? कॉम्प्लीमेंट नहीं, लेकिन मेरे क्या हो जाता है कि जैसे जैसे एक फेज चलता है तो कई बार मैं मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए मम्मी को बोला होगा कि देखो मम्मी क्या हो रहा है आजकल, गाने वाने नहीं मिल रहे हैं, और देखो कैसी कैसी आवाज़ है, ये है वो है, होता है ना, हाँ किसको बताइए, ना दुखड़ा रो रहा था, तो मम्मी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो तुम्हें जितना मिला है ना बहुतों को नहीं मिला है, खुश रहो। तो वो दिन और आज का दिन, वो जो मम्मी ने वो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन आई थिंक बहुत पते की बात बताई थी। क्या बात है। माँ को कौन सा गाना पसंद है? मम्मी को पुराने गाने ही पसंद है। अरे पुराना हो जाएगा, ऐसे कभी ऐसा बताया नहीं कौन सा गाना उनको पसंद है। जो नॉर्मली सुनती हो, जो वो सुनती बहुत हो, आपने सुनना हो। अब कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गा ही देता हूँ। कौन सा गाना, चलिए मम्मी डैडी की बात चली तो पिताजी का ही एक गाना, उन्हीं का म्यूजिक, और आज रवि साहब की बरसी है, और तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए गाना है कि
अपेक्षा म्यूजिक का लॉन्च कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। ओरिजिनल्स आजकल सुन के बड़ा अच्छा लगता है और देख के और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और इसमें जो सिंगर्स का सिलेक्शन है दैट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग, बिकॉज शान दादा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, शाहिद मालिया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर इन इंडिया, एंड उसके अलावा नकाश अजीज़ इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो आई जस्ट लव द कॉम्बो ऑफ दीज पीपल। ये जो फर्स्ट लॉट आया है अपेक्षा म्यूज़िक से, एंड आई एम होपिंग फॉर लॉट मोर टू कम। डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद देम, एंड मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी टाइप के ओरिजिनल्स बनाते रहें, क्योंकि ओरिजिनल सुनने में जो मज़ा आता है ना वो और कहीं नहीं आता है। सो प्लीज़ गिव अस मोर म्यूज़िक, मोर ओरिजिनल फ्रेश म्यूज़िक। मैं अभी बोला, मुझे ओरिजिनल्स में ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है। ऑफ कोर्स रीमेक में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है टू डांस ऑन द नंबर्स, आई जस्ट लव इट, बट स्पेशली आई प्रेफर मोर ऑफ ओरिजिनल्स। I'm an original person. Thank you everyone. Hello, hi guys. Okay, are we rolling? Hi guys, this is Mita Gondkar and I'm at the launch of Apeksha Music. I'm really happy that new companies are coming in, and of course the speciality or the USP of this company is that they're going to have all original music, no remixes. So you have new talent coming in, new music, so everything I'm looking forward. I want to wish Mr. Jaiswal all the very best and congratulations on this new venture. I wish the entire team a very, very happy and a successful year coming up. Thank you.